प्रोग्राम है, बहुत ही वैरायटी है उसमें। तो यहाँ सब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, बहुत खुश है लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वेरी नाइस। करना ही चाहिए, दैट्स राइट, यस ऑफ कोर्स। तो इज़ एवरीवन रेडी टू स्टार्ट द प्रोग्राम? और एक बात, अगर आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत हो तो हमारे ट्रांसलेशन डिवाइसेस आपको पीछे से मिलेंगे, तो आप हिंदी का ट्रांसलेशन हिंदी में सुन सकते हो। तो मोस्ट वेलकम to get the translation devices from the back. Shall we make a start? Yes, is everyone quite ready? Ready to make a start? Yes. Let's celebrate Diwali together. So, पहले तो हम एक दिवाली ऑडियो देखेंगे, सिस्टर जयंती जो हमारी यूरोपियन डायरेक्टर है, उनका ऑडियो देखने के बाद जो प्रीति बहन है यहाँ, जो बहुत ही सुंदर गाना गाती है, तो वो हमें कुछ गाने सुनाएंगी हिंदी में जो दिवाली से रिलेटेड होंगे या कोई उनकी जो टैलेंटेड सॉन्ग्स होंगे वो गाने सुनाएंगी। और उसके बाद हम ड्रामा देखेंगे जो हमारे यूथ और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने ये ड्रामा रेडी किया है, बहुत ही सुंदर ड्रामा है दिवाली के बारे में, तो वो हम देखेंगे। So I'll welcome the first performance and then we'll take it from there. Thank you very much for being a wonderful audience once again. Shanti. When we celebrate Deepavali, the timing of Deepavali is interesting to note that it follows after Dasara, and this then reminds us of one of the main stories linked to Deepavali. There are several stories, but this is maybe one of the main ones. And the story here is that Dasara, of course, is the memorial of the burning of the 10-headed monster Ravan. And does that have any relevance to me today? Surprisingly, it does. Because Ravan, the 10-headed monster, is the monster that's present in all of us today. The 5 big vices: lust, anger, greed, attachment, and ego. Then the 5 smaller ones. We call them smaller, but in fact they are as equally dangerous. Laziness, carelessness, giving excuses, deception and jealousy. And so each one of us, to a minor or a major extent, is influenced by Ravan in some way or another. And yet, with the help of Rama, the one supreme, the incorporeal, we are able to take power, and with the help of Hanuman, the one who is Rama's messenger, the messenger of God, we are able to take the power to banish Ravan and finish all negativity. And when we've done this, then truly there's a world of light, Deepavali, Ram Raj, the kingdom of God is able to come on earth. And on another level, we can see how the lighting of the Deepaks is the memorial of the eternal light of the soul. And they say that God is Deepraj, the Lord, the King of all the Deepaks, all the brides, the human souls. And so Deeprani, the human soul, has the light ignited by the Supreme, by the Lord. And when that happens, there's a totally new chapter that begins in our lives. And so the day after Deepavali, we also then have our new year. And so the new beginning is able to happen when we're now able to have the illumination of spirituality, divine wisdom, light guiding us in our lives so that newness can come in and transformation can happen.
There is also, of course, the memorial of Sri Lakshmi, Mahalakshmi, the one with 4 arms, the reminder that the kingdom of the Golden Age is a kingdom of Sri Lakshmi and Sri Narayan. And they can only invoke Sri Lakshmi if they've had a total clean out and they have light in every corner of the home. And so let me clean out completely everything that's negative from the soul and have light re-enter the soul, and Lakshan, all the goodness, all the virtues and the abundance that I seek will come into my life. And very soon the Golden Age, the age of truth, can begin. Om Shanti. ओम शांति। सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आप सबके ज़िंदगी में बहुत सारे कलरफुल जीवन आपका भर देगी, बहुत सारे रंग लेकर आएगी खुशियों के। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। इस गीत में आप सभी मेरा साथ दे सकते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण, हाँ, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
Hey, have you heard it's nearly Diwali? Yeah, of course. Has your mum made anything? Nah, same thing. Gugra, chevra, chakri. What about yours? Nah, not yet, but I'm sure she will. Do we know what Diwali is really about? Simple, really. Paisa, fatakra, mithai, nenawa kapra. No, it's not about that. Let me think. Book. Glasses. Let's think. Diwali. Aha. Diwali celebrates the return of Ram and Sita, their homecoming and coronation after spending 14 years in exile. Book. The glasses. Thank you. Let's see the story of Ram and Sita. But before that, Krishna has travelled all the way from the Golden Age to give us a Very special. message. इस महान कथा का वर्णन किसी धर्म या समाज की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए बच्चों के लिए सरलता एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत करना ही हमारा उद्देश्य है। इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, यही सब मानव समाज के चालक होते नहीं। यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या है। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ ना पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी। कैसे? जब इच्छाएं अपूर्ण रहती और टूटती, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय। ना, ये कथा नहीं है केवल इच्छाओं के संघर्ष की, नहीं है केवल महत्वाकांक्षाओं से जन्म लेने वाले भयावह रक्तपात। ये कथा है इच्छाओं के गर्भ से उदित होते हुए ज्ञान की। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। धरती से जन्मी हूँ मैं, जनक की दुलारी, मिथिला की राजकुमारी। है संस्कार मेरा श्रृंगार और ज्ञान मेरा उपहार। प्रश्न करना है स्वभाव मेरा, स्वतंत्र मेरे विचार। पिताजी कहते हैं ना, मौन रहने से अच्छा होता है प्रश्न करना। रामायण का एक अनदेखा रूप सीता की दृष्टि से। और सीखेगा छबीला, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला। राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। रावण के सारे पाप करेंगे जीरो, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे हीरो। विश्व विजेता है, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, राक्षस हैं, राक्षस हैं। मैं रावण हूँ। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। मैं रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विजय हमारी होगी। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है।
मुझे क्षमा करना प्रभु। कदाचित ब्रह्मदेव के वरदान को साकार करने और मेरा उद्धार करने के लिए ही आपको मनुष्य अवतार लेना पड़ा। त्रिमूर्ति के एक स्तंभ को धरती पर आना पड़ा। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके दर्शन से धन्य हुआ। मैंने बहुत पाप किए, परंतु आपके हाथों अब मेरी मुक्ति निश्चित है। प्रभु, मेरा जीवन अंत काल तक एक सीख बनकर याद रखा जाएगा। जब कभी अधर्म, अत्याचार और अभिमान की चर्चा होगी, सारा संसार मेरे विनाश, मेरे अंत से शिक्षा ग्रहण करेगा और आपकी कीर्ति के गुण गाएगा। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच्चा मन का वो रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी, ओ लावी, ओ लावी। बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी। हो ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है। आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। हेलो या आप सबको ये नाटक कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था। वेरी गुड। इन लोग के लिए once again a big round of applause.
इन्होंने बहुत मेहनत की है, थोड़े ही समय में ये नाटक उन्होंने रेडी किया है. सो डेफिनेटली वेरी वेल डन. थैंक यू. और एक शायरी सुना देती हूँ. एवरीवन रेडी? ज़रा सा मुस्कुरा देना दिवाली से पहले, हर गम को भुला देना दिवाली से पहले, ना सोचो किस किस ने दिल दुखाया, सबको माफ़ कर देना दिवाली से पहले. क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, इसलिए दिल को साफ कर देना दिवाली से पहले. थैंक यू वेरी मच. ओके, हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, जो नेक्स्ट आइटिनरी में है, वो मैं सिस्टर रेवा बहन और सिस्टर शशि बहन को इंट्रोड्यूस करूँगी. थोड़ा बहुत रेवा बहन के बारे में आपको बता देती हूँ. वह 40 साल से ज्ञान में है और 26 साल से नाइजीरिया की कोऑर्डिनेटर है. उनके पास ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान है और वो ऑब्वियसली वेरी स्पिरिचुअली क्वाइट एक्सपीरियंस्ड. सो उनका स्वागत करेंगे पहले और उसके बाद शशि बहन का. अगेन शी इज़ अ वेरी लवली पर्सनालिटी, तो वो भी हमें आके बताएंगी, जो ग्रीनफर्ड की कोऑर्डिनेटर. थैंक यू. सो वेलकम रेवा बहन फर्स्ट and then उसके बाद it will be Shashi Ben. Thank you very much for being a good audience again. Thank you. Om Shanti. Good evening. Happy Diwali to all of you. बहुत सारी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं. सबको बहुत बहुत खुशी की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. मैं समझती हूँ कि नाइजीरिया जाने से पहले मैंने मिडलैंड में बहुत सेवा की है. कम से कम 11 बरस मैं इस एरिया में थी और लेस्टर तो मेरा घर था. नॉटिंगम में मेरा सेंटर था, सेंटर नॉटिंगम में, पर सारे मिडलैंड्स में चक्कर लगाती थी. तो मुझे ख़ास अटैचमेंट है मिडलैंड से. तो मैं शायद 26 साल के बाद इधर आई हूँ. नहीं बाबू भाई, 26 वर्ष नाइजीरिया में सेवा की है. पर हमारा बाबा जो है वंडरफुल है. शिव परमात्मा निराकार. उसने जो आके हमको समझ दी है, उस समझ ने हमको बहुत बलवान बना दिया कि हम फॉरेन कंट्री, जो मोस्ट रफेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनमें भी सेवा कर सकते हैं. पर उसके लिए सिर्फ अंदर की शुभ भावना, शुभकामना चाहिए. एक्सेप्टेंस फॉर एवरीवन, no matter whosoever they are, whatever they are. हमें सबको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमको ये समझ मिल चुकी है कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता हैं. तो शरीर तो सबके अपने अपने हैं. कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रिलेशन, जेंडर, nationality, all these things comes on a physical level, nothing to do with the soul. Soul is as pure as clean, but soul has forgotten itself. Soul अपने आप को भूल चुकी है, अपने आप को देह समझने लग गई है, क्योंकि देह में बहुत समय से आ रहे हैं, इसलिए देह भान में आ गए हैं और भूल गए हैं कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं.
तो जब ये हमको मैसेज मिला कि हम आत्माएं उस पिता की संतान हैं, तो सबको आत्मा रूप देखना शुरू किया। तो फिर कोई भी रंग का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भेदभाव अंदर में नहीं रहता है। और हर एक एक्सेप्ट भी करता है जब आपकी शुभ भावना और शुभकामना सबके प्रति होती है। और एक अच्छी स्ट्रेंथ बनने वाली बात हमको परमपिता परमात्मा जी ने बताई है कि सबको भाई रूप देखो। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो और आपस में भाई भाई हो। तो ये भाई भाई का विजन जो है, ये हमको बहुत हल्का कर देता है। हम कहाँ भी जाएं, हम फियरलेस हैं। आप देखें गॉड एंड गॉडेसेस जो जिनकी हम पूजा करते हैं, गॉडेसेस की, फियरलेस है, उनको डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट परमात्मा की संतान है। इस समय परमपिता परमात्मा जो निराकार हैं, वो हमको आके बता रहे हैं कि मुझे भी मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। मैं शरीर नहीं लेता, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, मैं कोई डेटी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, a point of energy, and I am the supreme being, supreme power, supreme soul. तो आत्मा जैसे देखो ना, हम आपस में कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। आज दिन तक तो हम अपने आप को शरीर समझते रहे और शरीरों से ही लेन देन करते रहे। तो ये सब रावण की क्वालिटीज़ हमारे में आ गई। अभी परमात्मा ने बता दिया है कि तुम आत्मा हो और सर्व आत्माएं हैं। तो सब आत्माओं को भाई भाई की दृष्टि से देखो और समझो कि वो आपके परिवार के हैं। ये गॉडली फैमिली है, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। गॉड हमको पढ़ा रहे हैं और आधार लेके शरीर का खास, देयर इज़ ए फैक्टर ऑफ टाइम इन इट कि परमात्मा इस सृष्टि पे कब आते हैं। उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि जब मनुष्यों की हालत ऐसी हो जाती है, जो आप देख रहे हैं दुनिया में कितना पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार चल रहा है। और नाइजीरिया तो वर्स्ट ऑफ ऑल पूछो ही नहीं क्या कुछ हो रहा है, किसी दिन भी क्या भी हो सकता है। पर वहाँ फिर भी हम बैठे हैं बिल्कुल सेफ, जैसे बिल्ली के पूंगरे सेफ होते हैं ना, ऐसे उस परमात्मा की दया से वहाँ बैठे हैं, हमको कभी कुछ नहीं हुआ है। तो वो परमात्मा जब आके हमको डायरेक्ट अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे में वो शक्ति आ जाती है। जो हम अबलाएं हैं, सबला बन जाते हैं, शिव शक्ति कहलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शिव की शक्ति का इनकारनेशन हो जाता है हमारे में। तो अभी सब दुनिया को हमको सर्व करना है। पिता परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे सारी दुनिया, सर्व वर्ल्ड को सर्व करना है। सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तो उनके बच्चे समझ के हम चलते हैं तो हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नाइजीरिया में भी बहुत सेवा हो रही है, इतना सबको मैसेज आ रहा है। दे आर वेरी नाइसली टेकिंग द नॉलेज एंड इट्स वेरी गुड। वी आर स्प्रेडिंग द वाइब्रेशंस एंड दे आर मोर नाइजीरियंस दैन इंडियंस इन आवर क्लास। बिल्कुल एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। तो अपने में शक्ति भरने का एक ही साधन है कि एक्सेप्ट एवरीबॉडी, क्योंकि आत्मा एक्टर है, इंडिविजुअल है। तो हर एक एक्टर का अपना पार्ट होता है। कोई विलन का पार्ट बजाता है, कोई हीरो का बजाता है। पर हमको क्या करना है? हर एक के पार्ट को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि हम दूसरों के पार्ट को बदल नहीं सकते और ना ही हमको बदलने की कोशिश करनी है, क्योंकि हर एक का पार्ट नुंदा हुआ है। पिता परमात्मा ने बताया है कि ये ड्रामा साइकिल है, इसमें सब आत्माएं एक्टर्स हैं और सबका पार्ट प्रीऑर्डेन्ड है, नुंदा हुआ है। तो आप हर एक को सुख शांति खुशी के वाइब्रेशंस देते जाओ, सबको पहुँचेंगे। वाइब्रेशंस गोज फार अवे। शुभ भावना, शुभ कामना, और हम क्या रखना है हर एक के प्रति। तो अभी रावण को ज़रूर मारना है, तो अभी मार दिया ना कि राम के बाण से ही मरा। तो अभी रावण है क्या वास्तव में? 10-headed मॉन्स्टर कहा है ना। तो 10-headed मॉन्स्टर का मतलब क्या है? किसी इंसान के 10 सिर हो सकते हैं? कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा किसी माँ को 10 सिर वाला? नॉट पॉसिबल।
तो फिर क्या है रावण? रावण है सिंबल ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी लाइफ, इम्प्योर लाइफ। यू सी, 5 विकार मेल के, 5 विकार फीमेल के बिकम्स रावण, 10 हेडेड। क्योंकि आज देखो, भाई में अगर क्रोध है तो बहन में भी तो है, तो परिवार में फिर दोनों पटाखे फटते हैं, क्रोध से क्रोध लड़ता है, झगड़ा होता है, तो ये सब चलता है ना। और देखो, सचमुच में श्री रामचंद्र जी को वनवास भी क्यों मिला? किसने दिया? कोई बताएगा? स्टेप मदर ने। और किसने दिया? जेलसी ने दिया। तो रावण किसका सिंबल हो गया? जेलसी का। सारा परिवार फटा दिया मंथरा ने आके, कैकेयी का माइंड पोल्यूट कर दिया कि तेरे बेटे को राज नहीं मिल रहा है, उसके बेटे को राज मिल रहा है। तो ये तेरा मेरा जो चलता है ना, ये सब रावण है। तो आज फैमिली लाइफ कितनी दुखमय हो गई है। इसको फिर से सुखमय बनाने के लिए परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पे आ चुके हैं। आप सबको हार्दिक निमंत्रण है कि अभी आप भी थोड़ा आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राम राज्य आ रहा है। अभी हम जो राज्य कहेंगे चल रहा है, भगवान के शब्दों में रावण राज्य है। तो रावण को मर जाने के बाद राम राज्य ज़रूर आएगा, और हम शक्तियों के तीर ही उनको लगेंगे कि अपने अंदर सच्चाई, सफाई, धर्म, शांति, पवित्रता, प्रेम, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, वो लाने से ये सब अंदर की बुराइयां निकल जाएंगी, भाग जाएंगी, और बहुत सुखमय जीवन बन जाएंगी, सुखमय संसार बन जाएगा। हम चाहते हैं, ये हमारी दुनिया है। दुनिया कोई 4 दीवारें नहीं है। दुनिया में हम मनुष्य हैं, मनुष्यों से ये दुनिया बनी हुई है। तो अगर घर गृहस्थी में रह के भी अगर सुख नहीं है, तो हमने लाइफ का क्या किया? सारा समय दुखों में, आहों में, बीमारियों में, ये सब चीज़ों में जीवन बिता रहे हैं। इसको हम जीवन थोड़ी कहेंगे। तो परमात्मा अभी राम राज्य की स्थापना कर रहा है, और उनके सिवाय कोई कर भी नहीं सकता है। ये तो हमने आजमा लिया है। आज हमको भी 40 वर्ष हो गए हैं इस ज्ञान को फॉलो करते हुए। जीवन में इतना सुख शांति आया है कि बांटते जाएं, खुटता नहीं। जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो ये सुखमय संसार कैसे बनेगा? ये अंदर से ही निकलेगा। आप सबके अंदर है, पर सिर्फ क्या करना है, हमको विकारों को रिप्लेस करते जाना है वर्च्यूज़ में, वैल्यूज़ में, क्वालिटीज़ में, स्पेशलिटीज़ में। वो कैसे होगा? जब हम सब की स्पेशलिटी एंड क्वालिटीज़ देखेंगे, गुडनेस देखेंगे हर इंसान में। गुडनेस इज़ ऑन द नेम ऑफ गॉड। तो अगर गुडनेस लाते जाएंगे तो इस दुनिया गुड हो जाएंगी, हम भी सुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा बाप अभी आए हैं, टाइम तो 15 मिनट मिला है तो बाप आए हुए हैं, आप सबको हार्दिक निमंत्रण है। हाँ, कहते और बोलो, टाइम नहीं हुआ? अच्छा तो नाइजीरिया की लाइफ का भी आपको नमूना दे दूं। वहाँ तो रॉबर्ट्स घरों में आते हैं, हमारे पास भी आ चुके हैं। वी आर फियरलेस, हमको कोई डर नहीं। 3 बार आए हैं गन्स लेके, गन्स, आर्म्ड रॉबर्स हैं। हम तो ऐसे खड़े हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा पे रक्षा कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, पर आज दिन तक बाबा के घर से कुछ भी नहीं गया है। आए हैं, चले गए। तो जब आप शांत रहते हैं, गुड वाइब्रेशंस रखते हैं, सबको भाई की नज़र से देखते हैं, सबको गुड देखते हैं, तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है। एंड दे आर एक्सेप्टिंग दिस knowledge so much now. I'm very happy in being in service in Nigeria. तो अभी हमको दिवाली मनानी है। दिवाली का मतलब ही क्या है? अंतरात्मा का दिया जलाना है। ये दिया जल जाएगा तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। दिए का भी असल मतलब क्या है? हम मोमबत्ती नहीं जलाते हैं, क्यों? दिया ही क्यों जलाते हैं? दिया जो है वो मिट्टी का बना हुआ है। ये शरीर क्या है? मिट्टी है, राइट? और इसके अंदर जो वो बत्ती रखी हुई है वो आत्मा है। और तेल जो डालते हैं
वो ज्ञान का तेल है। ज्ञान का ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं, ज्ञान घृत डालते हैं, तो कैसे लाइट जग जाती है। तो जब आत्मा की रोशनी जग जाती है, आत्मा की लाइट जग जाती है, तो अंधकार, अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है, आप रोशनी में आ जाते हैं, तो दीपमाला हो जाती है। तो फिर पटाखे फोड़ते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, ये सब कुछ दिवाली का है। तो हम आपको सबको बहुत शुभ शुभ दिवाली विश कर रहे हैं कि आपकी सदा के लिए खुशी की दिवाली बनी रहे, खुशी रहे सारा समय। दिवाली के टाइम पे भी देखो, नए कपड़े पहनेंगे, नया घर की पूरी सफाई करेंगे, लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे, ये सब बातें जो हम करते हैं, स्वच्छ करते हैं, स्वच्छता। तो वेयर देयर इज़ क्लेanलीनेस देयर इज़ गॉड। तो परमात्मा के नाम पे ही इसका सारा सिग्निफिकेंस है। और विष्णु जी का दिखाया है नारायण, नारायण जी के 4 भुजा दिखाई है। अब 4 भुजा का मतलब क्या है? 4 भुजा वाला कोई इंसान हो सकता है? ये सब सिंबॉलिकल है, हमको पता ही नहीं, हम पूजा करते आ रहे हैं, भक्ति करते आ रहे हैं, पर इनका सिग्निफिकेंस हमको कभी पता नहीं चला। तो पिता परमात्मा ने आके ये सब शिक्षा दी है, बताया है कि विष्णु जी सिंबल हैं प्योर फैमिली लाइफ के, हार्मनी, यूनिटी, लव इन फैमिली लाइफ। 2 होते हुए भी ऐसे चलते हैं जैसे एक। 2 भुजा लक्ष्मी जी की हैं, 2 भुजा नारायण जी की हैं, दोनों को मिला के 4 भुजा हो जाती है, जिसको हम विष्णु कहते हैं। तो हम विष्णुपुरी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विष्णुपुरी मना सतयुग, गोल्डन एज। तो जब आत्मा में सतो प्रधानता आ जाती है तो सतयुग आ जाता है। तो सतो प्रधानता क्या है? 7 सोल्स क्वालिटीज जो आज विकारों ने ओवर पावर कर लिया है। ये काम, क्रोध, जैसे जयंती बहन ने सारा बता दिया दिवाली का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या बोला अलबेलापन, सुस्ती और बहानेबाजी, जेलसी, आलस्य, ये सब चीज़ें हैं। ये रावण का सिंबल है। अभी इनको जीवन से निकालते जाओ। सुस्ती और आलस्य आ गया तो आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, बदलाव नहीं आएगा। तो अभी परमात्मा आया है तो बहाना नहीं दो, जो कहे वो कर लो। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम इसी स्टेज तक तभी पहुँचे हैं, जो बाप सुना रहा है सर माथे पे, उसको फॉलो करते जाओ, तो आप पे कोई आँच नहीं आएगी। सांच को आँच नहीं है, परमात्मा सत्य है। वो इस समय आके सत्य सुना रहा है और हमको सत्य बना रहा है, सतयुग के लायक बना रहा है। अब सतो प्रधानता माना 7 गुण आत्मा के अपने अंदर लाने हैं, जो इटर्नल है, ऑलवेज देयर। वो है पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, समझ। ये 7 गुण जब हमारे में आ गए, सतो प्रधान आत्मा बन जाएंगी और सतयुग में अपने आप पहुंच जाएंगी। ओके, ओम शांति, ऑल द वेरी बेस्ट। नाइस मीटिंग यू ऑल।
Om Shanti, Om Shanti, good evening. A very happy Diwali, Diwali मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुशियों से भरपूर नया साल भी आ रहा है, सबको हमारी शुभकामनाएं। दिवाली मनाना कितना अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? खुशियाँ तो हर त्योहार लाता है और उमंग उत्साह भी लाता है, पर ख़ास दिवाली क्यों अच्छी लगती है? उसने बोला ना, पटाखे, मिठाई, भुगरा, बच्चों को तो वही अच्छा लगता है ना, ठीक है ना, पर हमको क्या अच्छा लगता है? दिवाली माना पारिवारिक फैमिली की भासना आती है, सब एक दो को शुभकामनाएं देते हैं, गले लगाते हैं, घर घर में मिठाई बांटते हैं, अच्छा लगता है, परिवार का है। और हम क्या करते हैं? दिवाली का मेन फीचर क्या है? हम घर घर में पहले क्या करते हैं? सफाइयाँ करते हैं। क्यों? पहले जब रावण बढ़ता है ना, तो बहुत इम्प्योरिटी जो है फैला के जाता है, ऐसा नहीं जाता है। तो रावण से पहले क्या आता है? रावण ऐसे नहीं मरता है। राम को बहुत मेहनत करनी पड़ी रावण को मारने के लिए, यहाँ तो उसने इजीली मार दिया। 2 मिनट में खात्मा कर दिया। आई विश कि इतना इजी होता। तो पहले नवरात्रि आती है, माना क्या 9 देवियाँ, उसकी खूब अच्छी पूजा करो तो शक्ति लो, शक्तियों से शक्ति लो तो रावण मरेगा। और शक्ति कहाँ से आएंगी? परम पिता परमात्मा से शक्ति आएंगी, वो सर्वशक्तिमान है। और हम कौन है? शिव शक्तियाँ हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाप के बच्चे मास्टर होते हैं ना। तो परमात्मा से शक्ति लेके रावण के 10 सिर काटो। उसने एक काटा, दूसरा आ गया, दूसरा काटा, तीसरा आ गया। तो राम राज्य कब आएगा? जब 10 ही कटेंगे, ठीक है ना। घर गृहस्थी में रहते हुए अगर आप गुस्सा नहीं करो, पर घर वाला आके थोड़ा थोड़ा घमसान करे, तो राम राज्य तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। फिर हम दोष देते हैं, वो गुस्सा करता है। वो बहन जी कहती हैं, पता नहीं घर में आते ही गुस्सा करता है। मैंने बोला कुछ तो होगा ना। फिर 2 मिनट चुप होके कहती है, हाँ, जब वो घर में आता है ना, मैं खूब उसको नैग करती हूँ, आते ही बोलना शुरू कर देती हूँ, ये हुआ वो हुआ। तो हम अपना नहीं देखते हैं कि हम क्या करते हैं, दूसरे करते हैं, वो जल्दी पता चल जाता है। तो घर गृहस्थी में राम राज्य कैसे आएगा? पहले तो घर में राम राज्य आए ना, पीछे संसार में आएगा, ठीक है ना। तो पहले अपना गुस्सा जीतूं, फिर उसका गुस्सा जीतूं। कोई काम ही नहीं करूं जो उसको गुस्सा आए, ठीक है ना। हम दोष दूसरे पर बहुत देते हैं, पर परमात्मा ने सिखाया है, बच्चे तू क्या कर, पहले तू बदल जा। भी सच्ची दिवाली आनी है ना, तो पहले रावण को कैसे मारेंगे? परमात्मा बाप कहता है, बच्चे तेरे अंदर जो है ना बुराइयाँ, वो रावण है, पहले वो ख़त्म कर दे। पर आज तक हम क्या करते रहे? वो ख़त्म करे तो मैं ख़त्म करूँ। वाइफ कहती है वो बदल जाए, और वो कहता है वो बदल जाए, और दोनों कहते हैं बच्चे बदल जाए। हम बदले ना बदले, बच्चे बदल जाए। हम हमेशा सुनाती हूँ, एक हमारी फ्रेंड थी, उसको मैं कभी जब भी मिलते थे ज्ञान सुनाती थी बहुत अच्छी तरह से। थोड़े समय के बाद देखा कि उसको थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने सुनाना बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद कहती है, शशि बहन आई वांट टू लिसन योर नॉलेज। मैंने बोला शायद उसको ज़रूरत होगी। हम गई, 10-15 मिनट सुनाया होगा। उसका हस्बैंड भी बैठा था,
10 बार उसने बोला, डार्लिंग आर यू लिसनिंग? मैंने बोला इसने मुझे अपने लिए नहीं बुलाया है, उसने मुझे डार्लिंग के लिए बुलाया है। अगर ये बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी। और डार्लिंग क्या कहता है? सारे झगड़े की जड़ ये है। ये बदल जाए तो घर सुखी हो जाए। हम एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, पर सच्ची दिवाली कब होगी? जब मैं बदलेंगी। और मैं कैसे बदलेंगी? जब मेरे अंदर जो अंधकार है अज्ञान का, अज्ञान को क्या कहते हैं? अंधकार है। दिवाली को क्या कहते हैं? दीपकों की लड़ी है, दीपकों की रोशनी है। एक भी दीपक जलता है, कितना अच्छा रोशनी हो जाती है, हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। तो आत्मा का दीपक जब जलता है तो ज्ञान जब अंदर पड़ता है उसका घृत, तो अज्ञान का अंधेरा विनाश होता है। पर आत्मा का दीपक जलाए कौन? हमको पता ही नहीं था पहले कि हम आत्मा हैं। हम अपने आप को क्या समझते रहे? हम देह हैं, शरीर हैं। शरीर भान में आते हैं तो विकार पैदा होते हैं, और विकार विकारों से लड़ते हैं तो रावण राज्य हो जाता है। पर परमात्मा बाप जो हमारा दीप राज है, मेन दीपक है, वो जब तक आके आत्मा की समझ नहीं देता है तो आत्मा का दीपक नहीं जलता है। तो सच्ची दिवाली परमात्मा इस समय हमको मनानी सिखाते हैं कि बच्चे तुम देह नहीं हो, देह से न्यारी आत्मा हो। तो जब आत्मा समझते हैं तो परमात्मा बाप भी, वो भी आत्मा है, पर परम है। परम माना सुप्रीम है। जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे ना, ठीक है? मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। तो हम परमात्मा को क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं। तो जैसे आत्मा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप है, देह में आती कैसे है, निकलती कैसे है, पता नहीं चलता है। इसी तरह आत्मा का पिता परम आत्मा है, वो भी आत्मा है, पर परम है, सुप्रीम है, सुप्रीम क्वालिटीज़ हैं। तो जब समझ आ जाती है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से कनेक्शन जुटता है, तो अंदर उसके लाइट आ जाती है। वो दीपक से आत्मा का दीपक जल जाता है। फिर परमात्मा आके टीचर रूप में जब हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। बच्चे तुम जब ऊपर से उतरे थे तो क्या था? सच्ची दिवाली थी। घर घर में हर आत्मा का दीपक जला था, ज्ञान घृत था, माना समझ थी। समझ प्रैक्टिकल जीवन में थी और समझ से दिव्य गुण जीवन में थे, दिव्य गुणों की धारणा थी। तो हम क्या कहते हैं? मंदिर की मूर्तियों में हम उनको कहते हैं ना, देवी देवता थे, हमारे जैसे लगते हैं, 2 हाथ 2 पैर हमारे जैसे हैं, पर हम हमारे जैसे होते हुए भी उनको देवी कहते हैं। क्यों? उनके जीवन में दिव्यता थी, दिव्य गुण थे, इसलिए उनको देवी देवता कहते हैं। तो परमात्मा इस समय हमारे जीवन की धारणा में दिव्य गुण सिखा के हमको फिर से लिविंग में देवता बना रहे हैं। और परमात्मा बाप हमको इस पढ़ाई का लक्ष्य, राजयोग की पढ़ाई का लक्ष्य क्या देते हैं? कि नर तू ऐसी करनी कर जो नारायण बन जा, और नारी तू ऐसे लक्षण धारण कर जो लक्ष्मी बन जा। नई बहू घर में आती है तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी आई, ठीक है ना? तो जब जीवन में लक्षण आते हैं तो हम सब क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी। और दिवाली का मेन फंक्शन, मेन क्या है? लक्ष्मी पूजा है ना। अभी लक्ष्मी कभी तो लिविंग में होगी ना, ठीक है ना? तो लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं। तो धन की देवी लक्ष्मी कैसे बनी, ठीक है ना?
तो लक्ष्मी के पूर्व जन्म में हाँ वो अम्बा सरस्वती थी। सो सरस्वती ने गुण दान शक्तियाँ खूब दान किया, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में वो लक्ष्मी धन की देवी बन गई। और लक्ष्मी की भुजा में क्या दिखाते हैं? पहले लक्ष्मी को कमल पर दिखाते हैं, कमल आसन दिखाते हैं, कमल पर खड़ा दिखाते हैं। और कमल का अर्थ ही क्या है? कमल फूल माना क्या? कीचड़ में कमल कैसे ऊपर में शुद्ध और पवित्र रहता है। तो परमात्मा ये लक्षण देता है कि बच्चे घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए तुम कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बनो। तो जब हम समझ जाते हैं कि कमल फूल गृहस्थी में रहते हुए सब कुछ समेटते हुए सब कुछ करते हुए न्यारे रहना, तो वो लक्षण आएंगे। और फिर लक्ष्मी जी के हाथ में कलश दिखाते हैं। वो कहते हैं सागर मंथन हुआ तो देवताओं और असुरों की अच्छी चटाभेटी हो गई ना, कि ये जो कलश में अमृत है जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये समझ जाते हैं कि भी परमात्मा बाप हमको ज्ञान अमृत पिला रहे हैं जिससे हम अमर लोक में जाके अमर हो जाते हैं, माना कि हमारा जीवन जो है मृत्यु शब्द ही नहीं है, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। और दूसरा लक्ष्मी जी के हाथ देखे ना ऐसे, और फिर वो क्या है, वो कॉइन छम छम करते आते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं ना। तो धन माना क्या? घर घर में लक्ष्मी आ जाए, धन की कभी कमी नहीं हो, खूब बरकत हो। तो परमात्मा बाप इस समय सिखाते हैं बच्चे, एक तो ज्ञान धन जीवन में धारण कर लो, गुणों का धन, शक्तियों का धन, खुशियों का धन जीवन में धन कर लो। और स्थूल धन को कभी भी मिसयूज नहीं करो। धन आता है तो क्या होता है, फालतू खर्च बहुत होता है। तो परमात्मा कहता है इस समय गुण शक्तियाँ जो भी है दान करो, पर स्थूल धन भी पात्र को दान दो। तो जब ये समझ जाते हैं तो कभी भी जीवन में स्थूल धन की कमी नहीं होती है। पर लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ शुद्धता होती है। तभी रावण मरता है तो घर घर की कोने कोने की सफाई होती है। यहाँ होती है मालूम नहीं है। भारत में तो खूब वाइट वॉश करते हैं सब, क्यों? बारिश के दिन होते हैं ना, तो बारिश में जब ख़त्म होते हैं बारिश तो खूब अच्छी तरह से एक एक कोने की सफाई। तो परमात्मा उसका महत्व बताता है। अंदर से विकार जाते हैं ना, तो अंदर की सफाई कर दो। कोने कोने में जो अंदर मैल फंसा हुआ है, विकारों का मैल है, बुराइयों का मैल है, इधर उधर की फालतू बातें हैं, जो सब एकदम सवच कर दो, सबका छुट्टी कर दो, अंदर से निकाल दो। तो क्या होगा? लक्षणों का वास होगा, लक्ष्मी आएंगी। और घर की स्थूल सफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम करते ही रहते हैं। पर अंदर की सफाई क्या है? परमात्मा के ज्ञान के बिना अंदर की सफाई नहीं होती है। तो परमात्मा रोज 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 ज्ञान का झाड़ू लगाता है। हमारी माता जी गीत गाती थी, मन मंदिर में मूर्खा झाड़ू रोज लगाया कर। मैं सोचती थी कौन सा झाड़ू होगा पर अभी पता चला ज्ञान का झाड़ू रोज लगा। तो जब ज्ञान समझ में आता है तो जीवन बदलता है। आपको कोई बात समझा दो, वो बुद्धि में बैठ जाती है, तो हमारी प्रैक्टिकल धारणा में आती है। हम कहते नहीं हैं, करते हैं। तो जब करते हैं तो उसका फ़ायदा जीवन में आता है, ठीक है ना। तो दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। मिठाई सबको अच्छी लगती है ना। कोई भी उत्सव आता है तो सबसे पहले लाइनें कहाँ लगती हैं? मिठाई शॉप पर वो भाई बताता है 1 घंटा मिठाई शॉप पर खड़ा रहा, जब मेरी बारी आई तो वो भाई कहता है ख़त्म हो गई मिठाई
मैंने बोला भैया घर में प्यार से बना ले। ठीक है ना। तो मिठाई अच्छी क्यों लगती है? मीठा अच्छा लगता है ना। तो मिठाई क्यों खाते हैं? परमात्मा इसका रहस्य बताता है कि बच्चे तुझे मिठाई अच्छी लगती है ना, तो तू मीठा बोल। मीठा बोल सबको अच्छा लगता है। और कड़वा बोल, कड़वा बोल अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तो अपने आप से पूछना होता है, क्या मैं सदा मीठा बोलते हूँ या बोलता हूँ? यस। हाथ नहीं खड़ा करवाती हूँ। पर आप सोचना, क्या मैं सदा मीठा बोलता हूँ, बोलती हूँ? मैं मिठास से भरी हुई हूँ? अगर नहीं हूँ तो दिवाली पर आप अच्छा साइलेंस में बैठ के ये सोचना, इस दिवाली में मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं कभी कड़वा नहीं बोलेंगे। सारा दिन हम बोलते हैं, बोलना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। पर क्या बोलते हैं वो आप सोचना, ठीक है ना। तो अगर मीठा बोलना है तो साइलेंस को अपने जीवन में धारण कर लो। जितना चुप रहोगे उतना अच्छा है। पर फिर भी बोलो, पर मीठे बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। हम कह देते हैं पर उसको धारणा में ले आते हैं ना। मैं हमेशा ये सुनाती हूँ, एक बहन है बहुत, वो जब भी एक फ़ोन कॉल आता ना 1 घंटा जाता है, 1 घंटा इधर की बात उधर की बात। ओ क्या अच्छी अच्छी चटपटी बातें अच्छी लगती हैं। तो हस्बैंड को फिक्र हो गया, मेरे मिनट्स जाते हैं। मेरा फ़ोन बिल आ जाता है। तो एक दिन उसने आधे घंटे में फ़ोन रख दिया। वह हैरान हो गया, तो बोला आज आधे घंटे में फ़ोन रखा? तो बोलता रॉन्ग नंबर था। फिर भी आधा घंटा गया। शौक होता है बोलने का, ठीक है ना। तो परमात्मा बाप कहते हैं बच्चे वो बोलो जिससे दूसरे की उन्नति हो, ठीक है ना, उन्नति हो। और दिवाली फिर मिठाई तो खाएंगे पर अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा जो मिठास भर लो अपने अंदर। फिर नया साल आता है तो नया चौपड़ा रखते हैं ना, दिवाली पर नया चौपड़ा रखते हैं। फिर लक्ष्मी जी से कहते हैं अभी पुराना तो ख़त्म करो, अच्छा है। तो परमात्मा इसका रहस्य क्या बताता है कि बच्चे अंदर से जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी सड़ी हुई आदतें हैं जो तेरे कोई दुख देती है ना, तो अंदर से अब भी उसको ख़त्म करके नया शुरू कर दे। नया वर्ष माना, नई खुशियाँ भरो अंदर। नई खुशियाँ कब आएंगी? जब कोई दुख की बात नहीं होंगी, कोई भी किसी तरह का अंदर जो भी दुख भरा हुआ है ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, कोई भी एनिमोसिटी या कुछ भी अंदर है, किसी के प्रति कोई ग्रज है या किसी ने कुछ कह दिया है, कोई कंप्लेन है, कोई ब्लेम है, कुछ भी अंदर कुछ गिल्टी है, कुछ भी है, अंदर से पुराने संस्कारों को ख़त्म करके नए जीवन में नई अच्छी बातें, नए दिव्य गुण धारण कर लो, तो खुद ही हम लक्ष्मी नारायण का रूप बन जाएंगे। अगर घर घर में लक्ष्मी जी आ जाएं, नारायण जी आ जाएं, तो घर घर स्वर्ग हो जाएंगे ना। तो परमात्मा बाप कहते हैं बच्चे तुम लिविंग देवता हो। आज से नवीनता अपने जीवन में भर लो, पुरानी बातें छोड़ दो, भूल दो, मन की सफाई कर लो। मैं तुमको दिव्य बुद्धि देता हूँ, और राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है। श्रेष्ठ कर्म करके अपना खाता बहुत श्रेष्ठ बना लो, तो श्रेष्ठ सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर दिवाली के बाद नया साल आता है, फिर नए साल के बाद क्या आता है? भैया दूज आता है, ठीक है ना। और कितना अच्छा लगता है भैया के मस्तक पर तिलक लगाना, कितना अच्छा लगता है। तो परमात्मा कहता है बच्चे अभी क्या कर, तो आत्म स्थिति में टक कर सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। जब हमारा विजन बदल जाता है तो स्पिरिचुअलिटी से हमारे अंदर स्पिरिचुअल प्यार पैदा होता है। हम गले तो लगते हैं सबको, शुभ दिवाली कहते हैं,
पर जिसको भी गले लगाओ आप ऐसा भाईपने का ऐसे वाइब्रेशंस दो, फिर अपने अंदर में उसके जो विशेषताएं हैं वो इतनी अंदर धारण कर लो कि जिसको गले लगाया है ना उसकी कभी बुराई नहीं देखेगा। हो सकता है, ठीक है ना? गले तो लगते हैं पर ऊपर ऊपर से लगते हैं। सच बोला। अभी सच्ची गले लगने की भावना आत्म स्थिति में टिक के आत्मिक रूप में देख के भाई भाई की दृष्टि से अगर उस आत्मा को आप प्यार से गले लगा के देखना कि जो भी आत्माएं हैं बहुत अच्छी हैं। इस सृष्टि रंगमंच पर उतरे हुए कितने बरस हो गए, अभी सब थके हुए हैं ना। क्यों? परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि रंगमंच है, तुम पाठ बजाने खेल खेलने उतरे हो। खेल खेलते खेलते कितने बरस हो गए। परमात्मा कहता है अभी तुमको मैं घर ले जाने आया हूँ, तो तुम अभी क्या करो, अपने जीवन में फिर से वो दिव्य गुण और पवित्रता धारण कर लो, सच्चाई सफाई धारण कर लो, तो सच्ची दिवाली मना लो। आत्मा का दीपक कभी बुझने नहीं दो। वो दीपक तो थोड़े दिन जलेंगे, जल जाएंगे, फिर क्या होगा, ठीक है ना? तो परमात्मा बाप हमको ये शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालो, रोज डालो। कभी कभी नहीं, चलो किस हफ्ते में एक बार आके ज्ञान सुन लिया। राजयोग की पढ़ाई माना रोज रोज। क्यों? दुनिया बहुत अपवित्र है, बहुत नेगेटिव है, और ऐसी दुनिया में खुश रहना, ऐसी दुनिया में सुखी रहना, इट्स समथिंग। तो परमात्मा ये शिक्षा देता है। अगर रोज़ सुबह हम भक्ति भी रोज़ सुबह करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, पर सब कुछ करते हुए भी जीवन में कोई भी मंदिर ठिकाने जाते हैं, इतनी लंबी लिस्ट तो बोलती है, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, ये नहीं करो, पर हम सुनते हुए भी जीवन की धारणा में नहीं आता है। तो परमात्मा अभी क्या कहते हैं हमको, राजयोग की शिक्षा से हमारा बुद्धि योग जब परमात्मा से जुट जाता है तो वो शक्ति आती है। समझ के साथ जब शक्ति आती है तो जीवन की धारणा में, वो धारणा में पवित्रता और सुख और शांति आती है। तो अभी सुबह सुबह उठ के अगर हम थोड़ा समय भी, क्योंकि एक बहन ने मुझे बोला, शशि बहन मेरे 3 बच्चे हैं, जब मैं सुबह उनको उठा के तैयार करती हूँ तो सब कुछ तैयार करके फिर मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो मेरे में ऐसा लगता है जैसे एनर्जी नहीं है, आई एम डेड, हाफ डेड। अभी 3 बच्चों को उठा के तैयार करना, ये करना, नेचुरली इट्स हार्ड वर्क, और काम भी करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क। तो मैं अभी क्या बोलूँ, शी इज़ राइट। तो मैंने उसको पूछा लाइटली, तुम कितने बजे उठती हो? तो बोला मेरा अलार्म बजता है ना तो मैं स्नूज़ पर हाथ रख देती हूँ। 5 मिनट मोर। जब टू लेट होती है ना, then I just get up and start shouting, get up, do this, make your sandwich, make you this. The whole house is half an hour battlefield. And she's right. अभी क्या बोलूं? तो मैंने बोला, अरे बहन जी थोड़ा जल्दी उठ जाओ। आधा घंटा उठ के नाइस चाय का कप पी के बैठ जाओ 15 मिनट। दिस इज़ रियली योर प्राइवेट टाइम फॉर योरसेल्फ। आपका अपना समय भी तो होना चाहिए ना। परमात्मा से मीठी मीठी बातें करो। भगवान इस समय ऊपर से इस सृष्टि पर हाजिर हैं, तुमको लक्ष्मी बना रहा है, तो थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें करके वो जीवन में लक्षण धारण कर लो। और बच्चों को भी ऐसे उठाओ कि जागो सजनिया जागो, राजकुमारी जागो। तो प्यार से उठाएंगी ना तो वो भी उठेंगे, ठीक है ना? तो पहले आप उठो फिर उनको उठाओ, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमारी सारी क्लासेस जो हैं
हमारा जीवन ही अमृत वेले से शुरू होता है। उठ के परमात्मा से वो शक्ति लो, सारा दिन जो हमारा इस बैटलफील्ड में जाएगा वो शक्ति से, हमारे जीवन की धारणा से हम खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन में जो दीपक है वो जगता रहेगा। फिर अज्ञान के अंधारे में कभी दुख की फीलिंग नहीं आएंगी। कभी किसी ने कुछ कह भी दिया तो भगवान तेरा भला करे, ठीक है ना। तो हम हर एक का भला सोचें। सबसे पहले किसका भला करें? अपना भला करें, तो सच्ची दिवाली हो जाएंगी ना, ठीक है ना। तो एक दिवाली दूसरी होती है, घर घर में दीपक तो जलते हैं, पर इस दिवाली को देखना कि मैं किसी एक आत्मा का ज्ञान दीपक जगा दूं। हो सकता है किसी को अज्ञान अंधेरे से दूर कर दूं। हमको परमात्मा का परिचय मिला है तो उसको भी खुशी, शांति, शक्ति परमात्मा से कैसे बुद्धि योग लगाना है, अगर किसी को पास ऑन करेंगे ना तो उसकी जीवन की जो खुशियां हैं वो आपको दुआएं देंगे। हमारे राजयोगा के इतने पर्चे हैं, कुछ भी लीफलेट्स हैं, किसी को भी आप देंगे कि मुझे इस ज्ञान से बहुत फ़ायदा मिला। आप सबको फ़ायदा मिला ना? मिला ना? मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो फिर कोर्स करना, लेसन लेना। तो ज्ञान से जीवन में परिवर्तन आता है, तो फ़ायदा मिलता है, खुशी आती है और एक दिन में ही फ़र्क नज़र आता है। तो किसी भी आत्मा का दीपक जगाना तो सच्ची दिवाली हो जाएगी। तो हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सच्ची दिवाली हो, घर घर में खुशियाँ मनाओ, खूब मिठाई खाओ, हर एक को गले लगाओ और आत्मिक स्थिति से भाई भाई की दृष्टि रखो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, 2 मिनट साइलेंस। हेलो। बहुत सारी आतिशबाजियाँ चल रही है बाहर, दिवाली की फीलिंग बहुत आ रही है। आपको सुनाई दे रहा है? अगेन, वंस अगेन, शशि बहन और रेवा बहन के लिए हम एक बार और तालियां बजाएंगे। वे बहुत दूर से आई है, उन्होंने टाइम निकाल कर हमें उनका अनुभव सुनाया। अब हम सत्युग का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखेंगे, जिसमें लक्ष्मी और नारायण की झांकी, चैतन्य झांकी हम देखेंगे। तो हमने कोशिश की है कि आपको सत्युग का नज़ारा दिखाए और फिर छोटी बच्चियाँ जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर नृत्य
तैयार किया है वो हम देखेंगे. सो एंजॉय. भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा. वसुधा पहने माला होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी. नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, हीरों से आकाश भरा. सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी. राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास. राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में.
जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। श्री कृष्ण प्रथम दैवी राजकुमार होंगे, सर्वगुण संपन्न वो कहलाएंगे। श्री कृष्ण प्रथम देवी राजकुमार होंगे, सर्वगुण संपन्न वो कहलाएंगे। अहिंसा परमो धर्म सबके दिल में रहेगा, सुख शांति प्रेम से सब संग रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म सबके दिल में रहेगा, सुख शांति प्रेम से सब संग रहेंगे। यही संसार फिर स्वर्ग कहलाएगा। कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। यही संसार फिर स्वर्ग कहलाएगा। कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। एक धर्म एक राज जग में होगा, 16 कला से पूर्ण जन जन होगा। एक धर्म एक राज जग में होगा, 16 कला से पूर्ण जन जन होगा। रत्न जड़ित सोने के महल होंगे, घी दूध की नदियों का स्रोत बहेगा। रत्न जड़ित सोने के महल होंगे, घी दूध की नदियों का स्रोत बहेगा। ऐसा ही राम राज्य जग में फिर आएगा। कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। ऐसा ही राम राज्य जग में फिर आएगा। कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा।
आप सबको ये नृत्य कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो मैं शायद भूल गई थी कि उसमें छोटा सा एक बालक भी था। तो मैं पीछे गई तो उसने बोला आपने बच्चियाँ बोला लेकिन मुझे आप भूल गए। तो उसके लिए छोटे से युवराज के लिए भी बहुत सारी तालियाँ और पूरे टीम के लिए और लक्ष्मी नारायण के लिए भी बहुत सारी तालियाँ। होप कि आपको सत्युग का नज़ारा अच्छा लगा हो। थोड़ी सी झलक दिखाई दी है ना? ओके। अब थोड़े से फ्यूचर इवेंट्स जो हमारे होने वाले हैं, तो अगर आपको लिखना हो या जस्ट टेंशन रखे इस वक्त, 14 तारीख को जो नेक्स्ट सैटरडे है, हमारा एक प्रोग्राम है मैजिक मिस्ट्री एंड द मीनिंग 6:30 से 8 बजे तक। और हर सैटरडे को हिंदी में यहाँ टॉक होते हैं जो 6:30 से 8 बजे तक होते हैं। और एवरी फ्राइडे इंग्लिश में टॉक्स होते हैं जो 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। और आज का प्रोग्राम अगर आपको देखना हो तो आप यूट्यूब, जो ब्रह्मा कुमारी इसका यूट्यूब है, उसमें भी देख सकते हो। अब हम टोली और ब्लेसिंग्स लेंगे जो दीपिका बहन और रेवा बहन हमें देंगी। तो अगर हम क्यू में और साइलेंस में ब्लेसिंग्स और टोली लें, और नियो जो हमारे सिंगर है वो हमें गाना सुनाएंगे। तो गाना सुनते सुनते फिर जो क्यू स्टार्ट हो तो हमारे अशर्स आपको गाइड करेंगे। तो प्लीज़ रूल्स फॉलो करिए ताकि सब मिक्स ना हो जाए। और फिर जब हम टोली और ब्लेसिंग्स लेके यहाँ से जाएंगे तो वहाँ एक बैरियर लगेगा, वहाँ से आप जा सकते हो। और फिर वो छोटा सा जो रूम है वहाँ आपको लक्ष्मी और नारायण की झांकी दिखाई देगी और आप दर्शन भी कर सकते हो। और मोस्ट at the end, I just want to say thank you very much everyone for coming. Hope you enjoyed today's program. Thank you very much. अंतरमनु में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। अंतरमनु में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो जाना रहा, पावन पुण्य सवेरा। अंतर मनु में ज्योति जगा लो, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चढ़ कर तुम
पालो अपना बसेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो जाना रहा पावन पुण्य सवेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो जाना रहा पावन पुण्य सवेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति 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 प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों ने तप का फल पाया धर्म ध्वजा फहराई। फाइनली मैं पूरे टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी द डेकोरेशन टीम जो लास्ट 10 दिनों से मेहनत कर रहे हैं इस स्टेज को डेकोरेट करने के लिए। सो पूरी टीम के लिए वंस अगेन थैंक यू। और नीचे बुक स्टोर भी खुला है, अगर किसी को बुक्स या सीडीज़ वगैरह देखने हो तो वो नीचे है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड इवनिंग एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू। स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा।
दुनिया चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से सर्व के सहयोग से सर्व के सहकार से चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से भूला है कर्मों की शुद्धि आज का आदमी हो भूला है कर्मों की शुद्धि आज का आदमी हो आज उसके आचरण में आ गई है कमी हो आज उसके आचरण में आ गई है कमी आओ हम ये दृश्य बदले अपने सद्व्यवहार से चलो दुनिया को